We are going to discuss media planning now. And this is a term that you might hear a lot in the advertising world, or you might hear certain other words like media buying, or media monitoring, or media strategy, everything that surrounds the media. We will be looking at these things in the next few sessions, and we will also discuss the best practices that media planners or the advertising professionals do. Before that, let us do a bit of a revision of what we discussed at the beginning of the semester. If you guys remember, we had this discussion on the five W's and where should we place the media management, uh, process in that five W's. व्हाट वी डिस्कस कि जब हमने मीडिया मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझना है तो हम उसको द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड इट थ्रू द five W's that we use for journalism as well. ठीक है, because media management is all about selling your most persuasive message to the right audience at the right time, so to say. ठीक है, so उसमें यही सारे factors involve होते हैं. The first one being why, which is our business objectives or our goals, right? Our goal could be that we are going to sell a product, or we are going to sell an idea to our potential customers or to our audience, or to build our reputation, or to create awareness about our brand. ठीक है, तो यही किस्म के जो है हमारे objectives generally इन्हीं areas में lie कर रहे होते हैं. Then comes what? So what is the message or the basic ad that we probably want to send to our customers? ठीक है, that is your most persuasive selling message जो हम advertising में use करते हैं, जो आपका मेन मकसद है उन तक पहुंचाने का. वो कौन सा मैसेज होगा, उसको किस तरह लिखा जाएगा, किस तरह प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका फॉर्म कैसा होगा, व्हाट शुड बी द स्टाइल, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज. ठीक है, तो इसमें आपकी सारी की सारी क्रिएटिव कंसिडरेशंस आ जाती हैं, right? Even when we talk about advertising agencies generally, तो यही कहा जाता है ना कि they deal in strategy, they deal in creative and production. ठीक है, and they deal in the media buying and media planning. So वो creative वाला part जो है वो इधर आ जाता है कि आपका message है क्या. Then comes your who, which is of course your target audience. आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, साइकोग्राफिक्स क्या है, उसमें आपकी सारी एक ऑडियंस प्लानिंग और ये सब चीजें जो है वो आ जाती हैं. Then comes the when. Now when is basically the timing or the time when you want to reach to your audience. ठीक है, किस वक्त जो है आपने एड चलाने हैं, कितनी दफा चलाने हैं, कौन से सीजन में आपने ज्यादा एडवर्टाइजिंग करनी है, या आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो ऑल सीजन चलती है. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर योर व्हेन, द टाइमिंग. एंड फाइनली इज द वेयर पार्ट, जहाँ पे आपने वो मीडिया सिलेक्ट करना है या वो मीडियम सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपने एडवर्टाइजिंग करनी है. दैट कुड बी योर प्रिंट, दैट कुड बी योर ब्रॉडकास्ट, दैट कुड बी डिजिटल, दैट कुड बी आउट ऑफ होम या आउटडोर एडवर्टाइजिंग जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो वो सारा जो है आपके वे में आ जाता है. So when we have to understand the process of media management, फॉर एग्जाम्पल इफ योर पर्सन जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बैठा हुआ है, तो उसने इसी सारे स्कोप पे काम करना है कि आपने ऑडियंस को भी देखना है, आपने मैसेज भी क्रिएट करना है, आपने जाहिर है उस सब चीजों को बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से भी क्रिएट करना है, आपने मीडिया भी सिलेक्ट करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी डिसाइड करनी है, एंड ऑल ऑफ दैट. इसमें जब हम लोग सिर्फ मीडिया प्लानिंग वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मीडिया बाइंग आ जाएगा, we'll also have a session on the media monitoring और इन सब चीजों के ऊपर. तो उसका जो कंसर्न होता है वो लास्ट थ्री क्वेश्चंस पे ज्यादा होता है, विच इज योर हु, योर व्हेन एंड योर वेयर. ठीक है, the stage where you are going to focus on your audiences, on the frequency and on the mediums that you are going, that is what the process of media planning is all about, जिसको अक्सर मीडिया स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है, या बट ज्यादातर मीडिया प्लानिंग टर्म यूज की जाती है. बड़ी स्पेसिफिकली मीडिया बाइंग भी उसके लिए जो है वो टर्मिनोलॉजी यूजली यूज की जाती है. ठीक है, इट डज नॉट मीन कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कैंपेन के या हमारी कंपनी के, वो इन सब चीजों में हमारे सामने नहीं होते. ऑल दीज थिंग्स गो हैंड बाय हैंड, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया प्लानिंग, दिस इज स्पेसिफिकली अ प्रोसेस जहाँ पे हमारा ज्यादा फोकस ऑडियंसेस पे और मीडिया पे होता है. ठीक है, ओके. So we'll now look at what media planning is all about. But it is a process in which there are a number of steps involved, and there are no hard and core steps.
So this is not a process where we will say that, okay, these are the 15 steps which are involved in media planning. And if you do that, then you are a good planner. और आपका मीडिया का प्लान बन जाएगा और बाकी चीजें आप इंक्लूड नहीं करोगे. Because depending on the kind of campaigns and the kind of clients that you are working on, there might be more steps involved, there might be less steps involved. It might be possible that you are working for your, like you are working in-house and you have to advertise on behalf of your own company. Then definitely कुछ चीजें, कुछ consideration जो है वो different हो जाएंगी as compared to when you are an agency and then you are, advertising on behalf of the client. It's a series of decisions and there are different steps involved in the delivery of messages to the audience. So ये वही एक proper basic communication का method है, that you have a message that you need to send to your audience, but since you have to send it through the media, so that's why it becomes important to plan that ahead. पहले से उसकी planning करनी है कि हमने किस तरह से media को utilize करना है to send the message across. Media planning entails finding the most appropriate media platform to advertise the company or client's brand or product. Media planners determine when, where, and how often a message should be placed. Okay? So basically, if we have to just define media planning in a few words, we can say that media planning is that when you have to send your message to your audience, and you are determining when and where and how often you have to send this message. Okay? The process of sending the right message to the right people at the right time, that is your media planning. And this is not something जिसको हम हवा में कर लेते हैं, क्योंकि माइंड में यूजली होता है कि हमारे पास तो जो कैंपेन चल रही है वो हम जो है पूरे पाकिस्तान में दिखा देंगे और शायद पूरी दुनिया में दिखा देंगे, बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली. आपको व्हीकल्स चूज करने पड़ते हैं, आपको पहले मीडिया चूज करना पड़ता है. विद इन दैट मीडिया यू हैव टू चूज स्पेसिफिक व्हीकल, विद इन दोज व्हीकल्स यू हैव टू चूज द स्पेसिफिक टाइमिंग जहां पर आपका मैसेज चलना है. सो ऑल दोज कंसिडरेशंस are kept in mind, and that is what media planning is all about. Our goal is to reach the right audience at the right time with the right message to generate the desired response and then stay within the designated budget. So we all know that there are like budgets involved in the entire advertising process, and those are not the normal budgets. जब आप tens of thousands of dollars के budgets लेके काम कर रहे होते हो, then you have to go by plan. And then you prepare those media plans, इसके accordingly जो है आपने अपना message लोगों तक पहुंचाना है. So until unless you will plan out everything, it will become very difficult for you to execute any campaign. अब ये जो media planning होती है, इसके क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज है. सो दीज आर नॉट रियली कैटेगरीज कि हम कहें दिस इज कैटेगरी 1, दिस इज कैटेगरी 2, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जनरली दो किस्म की मीडिया प्लानिंग जो है वो होती है. यूजुअली आपके जो लार्जर कंपनी इनिशिएटिव्स हैं या लार्जर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे स्पेसिफिक आप प्लानिंग कर सकते हो. ठीक है? या फिर जो है जनरली आपके मीडिया प्लान या ज्यादातर मीडिया प्लान जो होती हैं वो स्टैंड अलोन स्ट्रेटजीज भी होती हैं या स्टैंड अलोन स्पेसिफिक कैंपेन्स के लिए मीडिया प्लान जो है वो बनाए जाते हैं. ठीक है? सो देयर आर अ फ्यू मीडिया प्लान्स दैट अलाइन विद द लार्जर कंपनी इनिशिएटिव्स एंड कैंपेन्स फॉलोइंग अलोंग विद थ्रू ऑफ मैसेजिंग एंड कंटेंट. ठीक है? बेसिकली इधर लिखा हुआ है, बट जनरली जितनी भी आपकी कैंपेनिंग होती है वो प्री अप्रूव्ड मैसेजिंग और कंटेंट ही के साथ होती है. बहुत कम ऐसा होता है दैट यू डिजाइन कंटेंट ऑन द गो, बट जो आपके स्पेसिफिकली ब्रॉडकास्ट और प्रिंट पे एडवर्टाइजिंग हो रही होती है उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि आपने क्या एडवर्टाइजिंग मैसेज करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉपी ऑफ अ स्पेसिफिक एड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल मैसेजिंग जो कि आपकी कंपनी के गोल से स्पेसिफिक होती है. ठीक है? तो आपकी मीडिया प्लान जो बनते हैं वो या तो एक ओवरऑल इनिशिएटिव्स के उसके हिसाब से चल रहे होते हैं जो कि आपका एक रेगुलर का काम है, बट यू ऑल्सो हैव प्लान जो कि आपकी स्टैंड अलोन स्ट्रेटेजी को डील कर रहे होते हैं, वेयर यू आर गोइंग टू सी that you know how organization or how your organization is going to leverage the media and how it has to connect with the followers and the customers through different mediums. Take an example of some organization, for example United Nations है. ठीक है? So we know that it's a development organization and they have their goals and they have their SDGs
strategic development or all of these goals, जिसके specifically वो communication campaign जो है वो design करते हैं, and the campaigns go on for years and years, ठीक है। तो उनके अगर 15 साल का कोई उन्होंने STG का एक पूरा proper बनाया हुआ है, तो they would have specific goals related to it, उसके लिए वो 3 years के plans भी बनाएंगे, then they would have those 3 साल के ओवरऑल प्लान, बट उसमें फिर वो हर दफा जो है वो आफ्टर एवरी ईयर और आफ्टर एवरी 6 months दे वुड डू सम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज एज वेल, देन एट टाइम्स due to different reasons or due to what is happening in the world, उसमें कुछ वो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज भी बनाएंगे और कुछ स्पेसिफिक कैंपेन्स भी डिजाइन होंगी। फॉर एग्जाम्पल WHO ने अपनी जो पिछले अगले 5 साल के लिए कैंपेन सोची हुई थी, उसमें दे हैव मेड and they must have made a lot of changes due to the corona crisis. So अब कोरोना के लिए उनकी स्पेसिफिक कैंपेन जो है वो चल रही है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले का मीडिया प्लान उन्होंने डिसाइड किया हो या पहले जो उन्होंने एक अपना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाई हो उसको ही वो आगे कंटिन्यू सेम रखेंगे। दे वुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट, और उसके लिए वो नए कैंपेन्स भी बनाएंगे, एंड दे वुड हैव न्यू मीडिया प्लानिंग एज वेल, बिकॉज परहैप्स इफ दे वर थिंकिंग इनिशियली कि वो कौन कौन सी कंट्रीज में जो है वो किस तरह से एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, अब उन्होंने उसमें इजाफा भी किया होगा, बिकॉज नाउ दे आर फाइटिंग अ पेंडेमिक and they know कि they need to be very active with their communication and with their communication strategy. The same can be understood by comparing it with the campaigns that our government do, ठीक है। They do have these larger initiatives, but at times कुछ specific किस्म की campaigns आती हैं जिसमें again उन्होंने revisit करना होता है। So we have to understand that the media planning process is not something that you do once and then you just keep following it, which by the way is quite a practice in our advertising agencies or advertising world right now, कि जो सालों से मीडिया प्लान्स बने आ रहे हैं वो मिल जाते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के, पुराने लोगों ने बनाए होते हैं, नए लोग भी आके उन्हीं के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, एंड दे डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रिसर्च, बिकॉज आपने अगर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसा पता नहीं है या नहीं है, बट अगर आपने एडवर्टाइज your advertising plan या your media plan decided कि आपने जो है वो PTV पे कम एडवर्टाइज करना है, मे बी बिकॉज आपकी प्रोडक्ट जो है वो सूटेबल नहीं है, बिकॉज PTV जो है वो बहुत फार रीच एरियाज में भी जो है वो उसकी जाहिर देखा जाता है पूरे मुल्क में, लेकिन आपकी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको जरूरत नहीं है, आप बस वो जो आपके जियो और प्राइवेट चैनल्स आई थिंक उनकी ऑडियंस तक पहुंचाना काफी है। इट्स नॉट दैट कि आप PTV पे एडवर्टाइज ही ना करो थ्रू आउट, बट यू माइट नॉट कंसिडर इट एडवर्टाइजिंग एज मच एज other channels, but if you had that plan 2 years ago and if you have not changed it now when PTV is actually making more money, and it's not making more money, but there is a lot of audience जो कि अब PTV देखना शुरू हो गई है, can due to maybe Turkish dramas or due to some new programming that they have started doing, तो फिर आपका मीडिया प्लान जो है वो बेकार है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपकी जो है यू आर अ प्रोडक्ट और आप टेलीविजन पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो, या आप जो है आउटडोर पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो, इवन प्रिंट में भी बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट फॉर द पास्ट 5-6 years जो डिजिटल एड स्पेंड है पाकिस्तान में वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, और आपने अपना प्लान चेंज नहीं किया, देन दैट मीन्स यू आर एट द लॉस बिकॉज यू आर लूजिंग आउट ऑन द ऑडियंसेस जिसको शायद आपके कॉम्पिटिटर जो है वो घेर रहे हैं। तो मीडिया प्लानिंग इज नॉट अ वन ऑफ प्रोसेस के कोई एक दफा डिजाइन कर ली और उसके बाद वो चलता रहेगा। यू हैव टू मेक न्यू मीडिया प्लान्स with every campaign that you execute for your client or for your own organization. Okay, now we look at a few considerations that media planners should look for when they are doing media planning. These are the same things, I mean we questions hai, but again we are being very specific here that what they do consider, that where they have to advertise, theek hai, when they have to advertise, what type of media they have to use and whom they are trying to reach. Where to advertise में हम किस चीज को स्टडी करेंगे या किस चीज पे फोकस करेंगे, कैन somebody point that out? लाइक मैम डिजिटल मीडिया पे करेंगे, PR की बेस पर करेंगे, या फिर प्रिंट मीडिया पे यूज करेंगे, इस तरह कुछ। ठीक है, so your where is your media? हमारी पार्टी
टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करेगा ना। अगर तो हम रूरल एरिया से या किसी फार्मर्स को टारगेट कर रहे हैं तो हम रेडियो यूज करेंगे, और बाकी चैनल्स हम लोग उसके अकॉर्डिंगली टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करेगी कौन सी ऑडियंस है हमारी, फिर उसके हिसाब से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन वगैरह करेंगे। Perfect. Every kind of decisions that you make while designing your campaign, उसमें दो चीजें बहुत कंसिडर की जाती हैं। एक आपकी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड देन योर ऑडियंसेस। तो व्हाट फातिमा पॉइंटेड आउट कि आपने जो भी मीडिया डिसाइड करना है दैट इज अबाउट कि आपके अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और वेयर इज एग्जैक्टली योर मीडियम, विच हमजा ऑल्सो सेड। पीआर की बारी अभी नहीं है, पीआर इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग। सो बेसिकली मीडिया प्लानिंग का जो सारा प्रोसेस है ना, दैट इज मोर स्पेसिफिक टू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसमें जो हम आगे मीडिया बाइंग वगैरह भी पढ़ेंगे, इट्स नॉट दैट कि पीआर के लोगों को उसका पता नहीं होना चाहिए या वो उससे रिलेटेड नहीं है somehow other, but PR में ज्यादातर because we are looking at organic ways to get our message across। तो उसमें जो है हम उसमें भी प्लानिंग तो होती है कि कौन कौन से व्हीकल्स यूज करने हैं, बट उधर आप पैसे देके ज्यादातर अपनी स्पेस नहीं खरीद रहे होते हो। तो मीडिया प्लानिंग जो है वो एडवर्टाइजर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज देयर आर मनी इज इन्वॉल्व, यू हैव टू प्लान फॉर द मीडिया एंड यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान। तो इसलिए हम वो थोड़ा एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिस्कस करते हैं। सो योर वेयर इज योर मीडियम, then when to advertise, these are the same things by the way जो मैंने पहले पूछी थी, and I just want you guys to, अब आप में से कोई बोले, maybe somebody else who has not spoken yet, when to advertise में आपकी क्या कंसिडरेशन होगी? मैम एग्जैक्ट टाइम पे देखा जाए कि किस टाइम पर हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, लाइक एक स्पेसिफिक इवेंट पर अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें उसको देखना चाहिए, या टाइम पर भी देखना चाहिए, क्योंकि टारगेटेड जो ऑडियंस होती है वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पर ही क्या कहते हैं उसे पिंच किया जा सकता है। जी, सो योर व्हेन इज द टाइमिंग, ठीक है। व्हेन मींस कि आपने टाइम की कंसिडरेशन देखनी है कि आपकी कैंपेन जो है वो कब चलनी है। आपका कैंपेन तो एक ओवरऑल चीज है, बट आपका एड कब चलना है, ठीक है, किस टाइम पे चलना है, प्राइम टाइम पे आएगा या मॉर्निंग में आएगा, वीकेंड्स पे आना है ज्यादा या जो है वो वीकडेज पे ज्यादा आना है, ठीक है। ऑल दीज आर योर टाइमिंग्स व्हेन यू हैव टू एडवर्टाइज। किस सीजन में, अभी मैंने सीजन्स की बात की थी, so that is your consideration for the when, and then what type of media to use, ठीक है। what type of media is again कि आपने कौन कौन से मीडियम्स को यूटिलाइज करना है, चाहे आपने डिजिटल को करना है या आउटडोर को करना है या प्रिंट को करना है या इलेक्ट्रॉनिक को करना है, ठीक है। तो आपने कौन कौन सा यूज करना है मीडिया, और इसमें जो है वो मीडिया व्हीकल्स की भी बात आती है। आई हैव मेंशन्ड इट आगे जाके कि विद इन दैट स्पेसिफिक मीडिया आपने कौन से व्हीकल्स को चूज करना है। And then finally, of course, whom you are trying to reach, that is your target audience, the people that you want to reach out with your advertising message. So let us understand the media first. So even though it's media management and we are discussing media planning, but just to reiterate कि media exactly by media what do we mean, ठीक है ना। उसकी I am sure all of you know the different types of media with a niche domain as well, but still media strategy, पहली चीज ये कि at times you might hear media planning की जगह media strategy भी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना होता। मीडिया स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं, सो दैट इज लाइक योर ओवरऑल स्ट्रेटेजी और हाउ योर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ऑब्टेन, बट उसमें जो है फिर वो मीडिया बाइंग और मीडिया प्लानिंग का भी प्रोसेस सारा इंक्लूड हो जाता है। बट एट टाइम्स कुछ जगहों पे इसको स्पेसिफिकली जो पीआर प्रोफेशनल्स होते हैं वो मीडिया प्लानिंग के बजाय मीडिया स्ट्रेटेजी की टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द मीडिया, ठीक है, मीडिया इज बेसिकली योर डिलीवरी सिस्टम्स थ्रू विच यू आर गोइंग टू रीच टू योर ऑडियंस। आपका कम्युनिकेशन चैनल है आपका मीडिया, ठीक है। अब कौन कौन से मीडियम हमारे पास होते हैं? वी हैव ब्रॉडकास्ट, वी हैव प्रिंट, वी हैव ओओएच एंड वी हैव डिजिटल। ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपका आ जाता है रेडियो एंड योर टेलीविजन नेटवर्क्स एज वेल एज योर लोकल स्टेशन ब्रॉडकास्ट, ठीक है। व्हाट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ लोकल स्टेशन ब्रॉडकास्ट? City 42 because it is like a city specific channel, so that could be local, as well as your sorry, I was about to say CCTV, not the CCTV but your cable television networks, right? आपके जो cable television networks है वो भी local station broadcast में include होते हैं, ठीक है। So if you are a company जो के अगेन आप एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं हो
और आप एक नॉर्मल लोकल सा बिजनेस हो, जैसे आप लोग देखते ही होंगे अक्सर केबल टेलीविजन पे किस किस्म के एड्स चल रहे होते हैं, तो वो आप लोकल सिस्टम हो, कोई यू नो बट कड़ाही टाइप की दुकान हो या इस तरह की कोई चीज हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ एन एड स्पेंड जो कि नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। इन दैट सिचुएशन आपको अक्सर आपके केबल टेलीविजन नेटवर्क्स पे ही एडवर्टाइज करके काम पूरा हो जाता है। सो योर ब्रॉडकास्ट मीडिया वुड इंक्लूड योर रेडियो, योर टेलीविजन एंड योर local stations. Then you have your print media जिसमें आपके पास सारी published material आ जाता है, आपके newspapers होते हैं। Then you have your magazines. Also पहले जमाने में direct mail method होता था, वो इतना यूज नहीं होता है, but that used to be कि जब आपको एडवर्टाइजिंग होती थी खतो किताबत के थ्रू ना, आपको एक पार्सल आता था और उसमें वो एडवर्टाइजिंग जो थी वो की जाती थी। सो दैट इज योर डायरेक्ट मेल मेथड, नॉट यूज्ड अ लॉट नाउ, बट स्टिल वी डू गेट दोज ब्रोशर्स और इस तरह के अक्सर वो घर पे फेंक के चले जाते हैं, यू नो, टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। सो दैट इज स्टिल द केस। देन यू हैव योर OOH, विच इज योर आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, जिसको ज्यादातर आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है, बट देयर इज दिस एंटायर डिबेट इन द एडवर्टाइजिंग वर्ड कि अब इसको OH कहना शुरू लोगों ने कर दिया है, बिकॉज अब आउटडोर जो है वो नहीं रहा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। ठीक है, आउटडोर में पहले सिर्फ हमारे पास बिलबोर्ड वगैरह होते थे, बट अब इतनी चीजें आ गई हैं, तो एनीथिंग विच इज which includes billboards and other things as well, काफी ज्यादा इसमें BTL एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, उसको यूजली OH या आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएंगे, बिलबोर्ड्स आ जाएंगे, यू कैन गो ऑन रोड्स एंड चेक, यू नो, देयर आर बिलबोर्ड्स इन ऑलमोस्ट एवरी मेजर रोड in the city. Then you can also see कि वो walls को पेंट कर दिया जाता है, लिबर्टी राउंड अबाउट पे चेक कर सकते हो या मुख्तलिफ जगहों पे चेक कर सकते हो, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से यू नो पेंटिंग करके और अच्छी सी बना के जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग की जाती है। देन ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग होती है। कैन समबडी टेल मी व्हाट ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग इज? मैम वो जो आपकी बसेस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है या किसी और चीज़ के ऊपर जो व्हीकल होती है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है वो? Yes, so transit advertising is when you are advertising your product on any kind of moving vehicle or at the places where you know, like जहाँ से आप transit करते हो to from one city to another, like आपका airports हैं और आपके railway stations हैं और आपके bus stops हैं, ठीक है, तो उधर जो advertising होती है वो transit advertising कहलाती है। So वो भी आपकी आउटडोर में आ जाता है। फिर आपके इलेक्ट्रिक डिस्प्लेज होते हैं, नाउ वी सी के स्टैटिक बिलबोर्ड्स के अलावा वो इलेक्ट्रिक बिलबोर्ड्स भी आ गए हैं, पोल्स के ऊपर लगे हुए होंगे या मेजर जो आपके राउंड अबाउट अगर कहीं बने हुए हैं तो उस जगह पे जो है वो आपको वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेज नजर आएंगे। सो वो आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी पॉइंट ऑन सेल विच इज योर POS डिस्प्लेज, पॉइंट ऑन सेल, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेज होते हैं। these are when you go to different supermarkets or different shops और वहां विद इन दो शॉप जो एडवर्टाइजिंग हो रही होती है, ठीक है, चाहे वो उनके जो बिलिंग काउंटर्स है उधर उन्होंने एडवर्टाइज किया हो, अपने प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स रखे हुए हो या अदरवाइज कोई एक अलग से उन्होंने कियोस्क बना लेते हैं ऑल ऑफ दैट, तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी आउटडोर में आ जाती है। सो व्हेन यू वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, राइट? देयर इज दिस एंटायर ATL versus BTL debate as well, where ATL are your traditional media, you know, platforms, like whenever you are doing advertising through any kind of traditional medium, वो आप ATL advertising कहलाती है। But when you are using activities जहाँ पे audience खुद भी engage हो सके, there is some kind of interactivity involved and you are just, you know, moving besides the traditional method, that is called your BTL activities. It's above the line and below the line. तो उसमें आपकी यही सारी चीजें जो अभी मैंने POS में भी बताया था कि कोई ब्रांड एक्टिवेशन हो जाएगी, दे माइट गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू, यू नो, एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, कोई छोटी सी कोई गेम खिला देंगे लोगों को उधर, दे माइट डू फ्री सैम्पलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, वो सारी जो है आपकी BTL एक्टिविटीज में आ जाती है। सो बीइंग अ मीडिया पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एग्जैक्टली कि आपने कौन कौन से जो है वो मीडियम्स को यूज करना है to advertise your product. So these are just a few examples, but there are a lot of other ones as well.
एंड देन कम्स टू डिजिटल, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया इज अगेन समथिंग जो कि अब तो मस्ट हैव हो गया है इफ यू हैव लाइक इफ यू वांट टू रीच आउट टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स। उसमें आपके पास सारा कुछ आ जाता है डिजिटली, ऑल द डिवाइसेस दैट वी आर यूजिंग डिजिटली, और उस पे एडवर्टाइजिंग के मीडियम्स कौन कौन से हैं। ऑफ कोर्स यू हैव योर मोबाइल फोन, मोबाइल में एसएमएस मार्केटिंग आ जाती है। देन यू हैव योर सोशल मीडिया एप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे आप कर सकते हो। इसके अलावा इन ऐप एडवर्टाइजिंग भी होती है, ठीक है ना। एप्स लाइक यू आर प्लेइंग पबजी और व्हाटएवर, उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, देन यू हैव लाइक दैट इज योर इन ऐप एडवर्टाइजिंग। देन यू हैव योर एसईओ एंड एससीएम व्हिच इज योर ऑर्गेनिक एंड पेड रिसर्च, सॉरी ऑर्गेनिक एंड पेड रीच। उसके थ्रू आप किस तरह जो है वो ऑडियंस तक रीच आउट कर रहे हो। देन यू हैव योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड द ईमेल मार्केटिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब नई नई चीजें उसमें बहरहाल डिजिटल में भी आती जा रही है। सो इफ यू आर एन एडवर्टाइजिंग यू हैव टू सी कि आपने कौन सा मीडियम जो है वो सिलेक्ट करना है, या आपने एक मीडिया मिक्स बनाना है। मीडिया मिक्स इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड जहां आप मल्टीपल मीडियम्स को यूज करते हो, यू नो, एंड यू सी कि आपकी प्रोडक्ट किन किन मीडियम्स पे जो है वो एडवर्टाइज होनी चाहिए। सो यू क्रिएट अ मीडिया मिक्स कि ओके वी आर गोइंग टू फोकस ऑन television, and then we are going to focus on digital and not maybe newspapers but magazines, because you might think in newspapers में आपको उतनी reach नहीं मिलेगी। So depending on your product आप ये चीजें decide करते हो and you decide the media mix. Okay, then there is another term which is used, अभी I think मैंने पहले भी कहा था, which is your media vehicle, ठीक है। जब आप मीडिया प्लान बना रहे होते हो तो उसमें आप यूजली वो एक कॉलम भी बनाते हो मीडिया व्हीकल का। सो मीडिया व्हीकल इज बेसिकली द स्पेसिफिक मैसेज कैरियर विद इन द मीडिया कैटेगरी। वी नो ऑलरेडी कि मीडिया में ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब आ जाएगा, आउटडोर, ये सब कुछ आ जाता है। बट विद इन दैट स्पेसिफिक मीडिया कैटेगरी आप कौन सा स्पेसिफिक चैनल या कौन सा स्पेसिफिक न्यूज़पेपर जो है वो पिक कर रहे हो, दैट विल बी योर मीडिया व्हीकल, यानी कि वो व्हीकल जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर इज अ मीडियम थ्रू विच यू वांट टू एडवर्टाइज, बट उसमें आप फिर कौन से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना चाह रहे हो। सो इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपने डॉन, द न्यूज, खबरें और नवाए वक्त में अपना एड प्लेस करना है, दैट फोर publications will be your media vehicles. Similarly अगर आपने टेलीविजन पे एडवर्टाइज करना है एंड विद इन दैट टेलीविजन आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने जियो, एयरवाई और हम टीवी पे एडवर्टाइज करना है, सो दीज आर योर मीडिया व्हीकल्स। इसी तरह आप डिजिटल पे भी मीडिया व्हीकल्स डिसाइड करते हो। कैन somebody now share me an example of media vehicles within digital domain? Facebook. Yes, maybe somebody else can give more examples. YouTube, TikTok वगैरह। Yeah, so all your social mediums, you know, आपके IMO. digital media vehicles हैं कि आप like whether it's Facebook or Insta or TikTok or Snapchat or you know whatever, these are your digital media vehicles. Or maybe website specific also, that you know you want to advertise on Naya Daur and you want to advertise on the Jio website and you want to advertise on Urdu Point, so वो आपके digital media vehicles हो जाएंगे, ठीक है। So media is like generically जैसे हम term use करते हैं कि आपके मीडिया कौन कौन सा है, and we already know that we have these broadcast, print, electronic, etc. but within that आप specific किस channel को reach out कर रहे हो, that is your media vehicle. So I show you a plan, like a template of a plan as well, so उसमें वो media vehicles भी describe किए जा रहे होते हैं। Okay, now okay, by the way, let me ask another question. Why do we really have to decide कि हमने कौन कौन से चैनल्स पे ही एडवर्टाइज करना है? ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? मैम हमारी टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है ना कि हम लोगों ने किस ऑडियंस को रीच करना है। तो जोन से भी न्यूज चैनल्स ऑडियंस देखती है, क्योंकि सारे न्यूज चैनल भी हर ऑडियंस को नहीं देखती है, उसके हिसाब से हम अपने न्यूज चैनल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड हाउ डू वी मेक दिस डिसीजंस के कौन से चैनल जो है वो ज्यादा ऑडियंस देखती है या हमारी टारगेट ऑडियंस उस चैनल को ज्यादा देखती है? ये हमें पता कैसे चलता है? अगर मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बैठी हूँ तो हाउ वुड आई नो दैट? Based on the TRPs. Okay, so I think Hamza said survey, and Fatma, what did you say? Ma'am, TRPs or TRPs. Okay, Nimra ratings. has, yes, your television rating points, your TRPs, ठीक है।
These are important things. So basically, you know, where I want to take you with that is कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा, वैसे हमने अब तक कोई रिसर्च पे फोकस नहीं किया है सच, बट यू गाइस ऑलरेडी नो कि आपने पहले आई थिंक 3 और 4 में भी पढ़ा होगा और आप कैंपेन डिजाइनिंग में भी पढ़े होंगे, दैट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. You are dealing with the money, right? आप बजट आपके पास आया हुआ है आइदर क्लाइंट का या आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू स्पेंड इट इन अ प्रॉपर वे. सो उसमें आपको कोई ना कोई आपके जो डिसीजन होते हैं वो हवा में नहीं होते, ठीक है. वो डिसीजन, वो शायद गवर्नमेंट उस तरह का डिसीजन ले सकती है, जैसे कि हमने एक दिन डिस्कस भी किया था कि अच्छा जी हमने तो अपनी कैंपेन चलानी है तो ARY पे तो ज्यादा ही एड्स होंगे ना, वो शोर होंगे, ARY तो गवर्नमेंट की बुराई कर ही नहीं सकती. बट जो आपका एडवर्टाइजर है, जो कि आपका एक MNC है या एक नॉर्मल लोकल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो इस तरह का रिस्क नहीं लेगी कि वो अपने किसी फेवरेट ही को जो है वो ज्यादा, दे वुड लुक एट द TRPs, दे वुड लुक एट, अगर न्यूज़पेपर है तो उसकी सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है. अगर उसकी सर्कुलेशन, ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि जंक की सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट जिस एरिया में मेरी प्रोडक्ट ज्यादा बिकनी चाहिए उधर शायद जंक की सर्कुलेशन ज्यादा नहीं है, उस स्पेसिफिक एरिया में जो है वो उम्मत अखबार की ज्यादा है. हालांकि उम्मत अखबार इज नॉट समथिंग जो कि वैसे उसकी सर्कुलेशन या क्रेडिबिलिटी हो, बट मे बी मेरी प्रोडक्ट ही ऐसी है, तो आई विल यूज इट मोर. I will, you know, consider it as like one of the top contenders to be my media vehicle instead of जंग, ठीक है. और ये डिसीजन आप हमेशा रिसर्च की बेस पे ही लेते हो. अब वो रिसर्च या आपको वो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ से मिलते हैं? दे कुड बी द TRPs. सो वी नो के यूजुअली चैनल्स और उनकी जो TRPs होती हैं वो रिलीज होती हैं, एंड यू नो ये जितने हमारे PAA एंड PAS हैं, विच इज आवर पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एंड पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग सोसाइटी, इसके अलावा आपके PID और PGPR जो कि गवर्नमेंट की देखते हैं, तो इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है या फैक्ट शीट जो है वो ये लोग रिलीज करते रहते हैं, जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा दीज आर द स्पेसिफिक चैनल्स एंड स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल जो कि आजकल ज्यादा लोग देख रहे हैं, एंड वी कैन यूटिलाइज देम. डिजिटल पे भी बड़े आराम से आपको जो है वो डिफरेंट मीडियम्स की प्रोज एंड कॉन्स और उनके एंगेजमेंट रेट्स वगैरह इजीली पता चल जाते हैं. बट अ लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू डू योर रिसर्च एज वेल. आप खुद से भी सर्वे करते हो, आप खुद से भी जो है वो फोकस ग्रुप्स करवाते हो, आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स यूज करते हो टू अंडरस्टैंड एंड टू डिसाइड कि आपने कौन सा मीडिया व्हीकल यूज करना है. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिव work. Of course it is creative, of course you have to do copy and you have to do that, but there is a huge workforce within advertising agencies जो के नंबर्स के साथ डील कर रही होती है. दे आर डीलिंग विद कि अच्छा जी कहाँ पे ज्यादा रीच है, कहाँ पे ज्यादा ऑडियंस जा रही है. इवन अगर वो BTL एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वो ये भी देखते हैं कि अगर हमने मॉल्स में करना है तो कौन से मॉल्स में करना है, कहाँ पे हमारी टारगेट ऑडियंस ज्यादा होगी. बिकॉज एक जनरल तरीका तो ये है कि अपनी चीज हर जगह पहुंचा दो, फैला दो, एंड देन पीपल विल सी इट एंड रिकॉग्नाइज इट. बट अब ज्यादा फोकस यही हो रहा है दैट advertisers want to reach out to the niche audience, and when you want to reach out to the specific audience, तब आपको research based decisions ही लेनी पड़ती है, और at least that is the good way to go. अभी आज से कुछ साल पहले तक या अभी भी मेजरली अगर हमारे कुछ लोकल सेट काइंड ऑफ एजेंसीज में ये कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत रिसर्च बेस्ड डिसीजंस नहीं लेते, देन ट्रस्ट मी दोज आर स्पेसिफिकली द ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने बहुत ज्यादा जो है वो बजट को वेस्ट कर देती हैं, एंड दैट शुड नॉट बी द केस. अब आजकल वो जमाना नहीं रह गया, अब आपके पास बहुत ज्यादा तरीके हैं टू अंडरस्टैंड विच मीडिया व्हीकल इज बेस्ट फॉर यू. अच्छा, अपनी रिसर्च के अलावा भी कुछ कंपनीज होती हैं, इवन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ही होती हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं, यू नो, कंपनीज को इस तरह की रिसर्च और इस तरह के फिगर्स पहुंचाने के लिए. जैसे वो बाबर ने जो किया था सेशन, उसमें ग्रुप एम के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई थी. सो ग्रुप एम जो है उनकी एक एक्सपर्टीज ही है कि वो इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं on the different kind of mediums that you should use. वो बहुत ज्यादा रिसर्चेस कंडक्ट कराते हैं, उनका पूरा एक डोमेन है जहाँ पे वो मीडिया रिसर्च जो है वो करते हैं. इसके अलावा नीलसन वालों की रेटिंग्स आती हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल जो उसके ऊपर काम करती हैं, एंड यू कैन यूटिलाइज ऑल दोस थिंग्स टू मेक योर decisions related to the media vehicles or the media specific media channels that you are going to use.
अच्छा, नाउ जस्ट टू सम इट अप, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मीडिया प्लानिंग जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है? आई थिंक वी काइंड ऑफ टच्ड अपॉन दैट a couple of times, but now if somebody can tell me ये इतनी प्लानिंग करने की जरूरत क्या है हमें एडवर्टाइजिंग करने से पहले? ताकि हमारा मैसेज जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें हम अपनी ऑडियंस को। ठीक है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। एनी अदर एडिशन टू because it's दैट? the only way to reach your audience. आपका मैसेज जितना भी अच्छा है लेकिन आपका अगर चैनल ही ठीक नहीं है आपका जिससे आप और टारगेट ऑडियंस से पहुंच सकते हो, देन आपकी जो कैंपेन है वो इफेक्टिव नहीं होगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा, सेल्स नहीं होंगी। और कोई नुकसान? अगर मैं एक मैं एड एजेंसी में हूँ और मैंने एक क्लाइंट की कैंपेन उठा ली और मैंने प्रॉपर मीडिया प्लानिंग नहीं की है, तो व्हाट आई विल एंड अप लूजिंग? क्रेडिबिलिटी। ओके, सो निम्रा हैज रिटन क्रेडिबिलिटी, अलीजा हैज रिटन योर क्लाइंट। हाँ, पहले तो क्लाइंट ही लूज कर लेना है ना, कि पता चले कि जी एड जो है वो किसी हाई एंड प्रोडक्ट का था और मैंने जो है ना वो किसी लोकल चैनल पे जो है वो चला लिया। जस्ट इमेजिन पोस्ट का या इस तरह के हाई एंड चीजों का एड जो है वो आपके केबल टेलीविजन पे चल रहा हो, तो इस तरह खैर इस तरह की बेवकूफी कोई करता नहीं है। बट द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू लूज योर क्लाइंट फॉर श्योर, you are going to lose your credibility, and eventually this entire process of advertising is that you are going to sell your most persuasive message through like paid means। ठीक है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो आपका बजट जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बजट में डील करना पड़ता है। सो यू आर एलोकेटिंग फंड, सो व्हेन you are allocating funds to the right products in the right media, that is where you are utilizing the entire budget in a proper way. If you don't do it, आपने अपना जो है वो बजट से आप ओवरबोर्ड चले जाओगे, बिकॉज और फिर जब आप ओवरबोर्ड चले जाओगे देन देयर इज नो वे फॉर यू टू कम बैक। ठीक है, माइट वर्क इन सम सिचुएशन, जैसे कि अगेन हमारी गवर्नमेंट के एड स्पेंड की हमने बात की थी कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर इलेक्शन सीजन आने वाला है तो वो उनके जो एक स्पेसिफिक बजट है वो उससे ओवरबोर्ड चले भी जाएंगे तो क्या है, अगली गवर्नमेंट ने आके उनको ब्लेम ही करना है ना इस चीज के ऊपर। जैसे पीएमएलएन को भी ब्लेम किया पीटीआई ने, एंड राइटली सो के इतना ज्यादा एड स्पेंड किया गया। मगर अगर आप एक क्लाइंट आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो और आपको जो है किसी क्लाइंट ने दिया है, फॉर एग्जांपल आपको डिटॉल की एडवर्टाइजिंग कैंपेन दी गई और आपको स्पेसिफिक बजट दिया गया है कि आपने मे बी ये कैंपेन जो है बस वो विद इन अ मंथ एग्जीक्यूट करनी है और इसके लिए आपके पास जो है वो $100,000 है। तो आप और यू हैव टू रीच आउट टू ऑल द डिफरेंट मीडियम्स, लेकिन आपने पागलों की तरह कैंपेन स्टार्ट कर दिया, यू हैव नॉट रियलाइज्ड कि आपने कौन कौन से व्हीकल्स को यूटिलाइज करना है और उसकी एंड पे रीच इतनी नहीं आई, उसकी एंगेजमेंट रेट इतना नहीं आया, आपके लोगों ने इतना देखा ही नहीं, और अल्टीमेटली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द काइंड ऑफ ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे आर सेलिंग। तो बेसिकली आपने अपना सारा का सारा बजट जो है वो वेस्ट किया है। सो मीडिया प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट specifically from the agency point of view because you end up wasting budget. Of course बाकी चीजें भी include है, it is important because you have to reach to the target audience and you have to advertise during the right period or the right season। ठीक है, वो जो when वाला फैक्टर है that is like very very important, that you know if you have a product आपने उसको कब एडवर्टाइज करना है, किस सीजन में। a lot of products are seasonal, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक सीजन में ही जो है वो ज्यादा एडवर्टाइज होती है, बाकी सीजन में उनके एड्स कम हो जाते हैं। नाउ यू विल सी ऑल दोज रमजान एड्स एंड यू विल सी के कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनका हर 2 मिनट बाद एड आ रहा होता है और बाकी पूरे साल में दे डोंट एडवर्टाइज एज मच। वही बाकी चीज है कि जैसे कि फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स वुड बी एडवर्टाइज मोर ड्यूरिंग दिस मंथ, एंड ऑफ कोर्स फिर वो ईद आने वाली होती है तो यू वुड सी ऑल दोज क्लोथिंग ब्रांड्स जिनकी ईद कलेक्शंस आ रही होती हैं। इलेक्शंस आने वाले होंगे तो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं कि किस सीजन में आपने कितना एडवर्टाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है आपको मीडिया प्लानिंग से ही पता चलता है।
and you eventually stick to your budget if you have a plan ready. If you don't have a plan, तो फिर आप जो है totally इधर उधर जा रहे होते हो and you don't know what to do. Also, media planning is essential because it helps you in conducting analysis or measuring the success of your campaign. जिस तरह हमारे यहाँ रिसर्च को बहुत अंडरमाइन किया जाता है, उस तरह हमारे ये जो लास्ट प्रोसेस होता है यूजली कैंपेन का, जहाँ पे आपने एनालिसिस करना होता है कि कैंपेन कितनी सक्सेसफुल हुई है कितनी नहीं हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अनटिल आपने मीडिया प्लानिंग अच्छे से नहीं की होगी, आपका वो जो इवेल्युएशन का प्रोसेस है ना, वो भी हैम्पर होगा, उसमें भी इश्यूज आएंगे और आप सही तरह से डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि इफेक्टिवनेस कैंपेन की कितनी थी और कितनी नहीं थी. तो मीडिया प्लानिंग बिकम्स absolutely essential in all these contexts.